This is General English for BCom for fourth semester. So already I have completed 3 poem Ozymandias and My Last Duchess and Hope is the thing with feathers. So already I have completed these 3 poems. So you have a choice from unit 1. Either you can attempt the poetry or prose, the lottery ticket. I am going to explain now today. And from unit this fourth unit, fifth unit, sixth unit is given to you, So fifth unit you have My Last Duchess or Doll's House, anyone you can select it. And from unit 6 poetry, Hope is the feathers with thing with feathers. Hope is the thing with feathers. This is the poem. And prose you have Packing. So anyone you can write it into the exam. I am going to explain all the 3 poems and 3 prose. It is your choice. Whichever you are finding easy, you can write 2 or 3 pages in the exam. That means easy language. Sometimes what will happen, poem will be easy and prose will be hard. Sometimes you will like to write more in the prose than the poem. So it's based on you. I am going to explain all the things, but it is your selection. So based on your whichever you are finding easy, you can write more and more. Which topic you are finding it's so easy that you are convenient with that, you select it. It's clear, no? So now today I am going to explain about the lottery ticket. This is Anton Chico is the writer. Page number 11. Those who don't have this material new edition of 2025, for them I am uploading this photo copies, whatever I am explaining, summaries. These summaries I am uploading on YouTube, this Telegram channel, Hikmat Learning Academy. You can learn from that. It's clear, no? So now let's start lottery ticket at a glance. About the author, name Anton Pavlovich Chico is the name of this author. Then he born in January 29, 1816, Taganrog, Russia, and he died in July 15, 1904 in Brandenburg, Germany. He born in Russia and he died in Germany. That you remember, and you have to remember the years. In 1860, 1904. In 29th January he born, and July 15th he died. These dates are important. Countries are important to remember. प्रोफेशन रशियन प्ले राइट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड फिजिशियन भी है. एंड लिटरेरी कंसल्टेशन यू कैन राइट दिस information in a paragraph also. One paragraph is sufficient for about the author. So whatever the information he write like that in the paragraph also you can write, or you can present in a tabular form. You will get good marks for that. मतलब presentation आपका कैसा रहता depends that you can score very good marks in the exam. And whose handwriting is small, don't write that. Most of the that in whoever correction the paper, most of them I find them specs there. So the letters जो भी रहते ना आपके, don't write so much small. Easily they should understand what you have write. Then they will correct your paper. So one point that regarding the presentation I am telling you regarding your handwriting. So take it in a positive way. So next we have literary. These are the play, short story writer, plays he wrote. Then notable works, the cherry orchard and singularly the lady with the dog, the lottery ticket. जो अपन अपने को अब है प्रोस, ये उनके 4 जो है सो को से भी 4 ऑथर के बारे में आपको क्या क्या लिखना रहता है, नेम लिखना रहता है, उनका बॉर्न वे कब डाइड वे, उनके क्या फेमस वर्क है, ठीक है, उसके बारे में. राइटिंग स्टाइल क्या था इनका, फोकसेस ऑन ह्यूमैनिटी नेचर के बारे में ज़्यादा लिखते थे, आयरनी एंड लाइफ्स कॉम्प्लेजेशन ऑफन मिनिमलाइज इन स्टाइल. लिगेसी pioneer of modern short stories, work I still studied and appreciated worldwide. इनका वर्क पूरा वर्ल्ड वाइड में अप्रिशिएट हुआ. अब अपने को यहाँ पर जो है सो कैरेक्टर्स क्या क्या है ये लेसन में लॉटरी टिकट में. इवन डिमिट्रिच. सो वॉट एवर यू प्रोनाउंस इज डिमिट्रिच. ए मिडिल क्लासमैन है, इसमें अपने को इवन डिमिट्रिच के बारे में है ये लेसन में. एक मिडिल क्लासमैन है, कंटेंट विद द मॉडेस्ट लाइफ बट हीज ग्रीड एंड इमेजिनेशन लीड टू डिसकंटेंटेड. एक मिडिल क्लास मैन है, ठीक है, उनकी मॉडेस्ट लाइफ है लेकिन फिर भी जो ग्रीड, जो लालच रहती ना इंसान में, वो एंड इमेजिनेशन उनका जो है ना, उससे उनको डिसकंटेंटमेंट होता. ठीक है, ये स्टोरी में बताया गया अपने को. और एक माशा डिमिट्रिच
ही इवन की वाइफ है उन्हों हु ऑल्सो बिकम्स कंज्यूम्ड बाई ड्रीम्स ऑफ वेल्थ, इन्हों भी जो है सो पैसों के उसमें ख्वाबों में चले जाते हैं उन्हों, एंड इवेंचुअली डिस्ट्रस्ट हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड कुछ डिस्ट्रस्ट करने लग जाते। ये दोनों अपने को कैरेक्टर है, अपने को ये पोयम प्रोज में मेन कैरेक्टर क्या क्या है आपको वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव कोर मीनिंग। कोर मीनिंग क्या है ये लेसन का? एंथन चिको कौन है ये? ऑथर है ये। एंथन चिको द लॉटरी टिकट इज प्रोफाउंडेड शॉर्ट स्टोरी है ये, दैट एग्जामिन्स ह्यूमन इमोशंस, अपने ह्यूमन बींग्स के जो इमोशंस रहते हैं ना, वो ह्यूमन बींग के इमोशंस के बारे में यहाँ पर ये लॉटरी टिकट में अपने को बताया गया है। डिज़ायर, लोगों की जो ख्वाहिश रहती, एंड द फ्रैगिलिटी ऑफ रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाते लोगों को वेल्थ को लेके, उसके बारे में बताए। व्हेन टेस्टेड बाय एक्सटर्नल टेम्पटेशन लाइक वेल्थ, द स्टोरी ऑफ कैप्चर्स यूनिवर्सल थीम लाइक ग्रीड, ये तो सबके अंदर रहता ना, ग्रीड रहता, लालच, डिसकंटेंट एंड द डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, दिन में जो ख्वाबां देखना शुरू कर डालते लोग, उसका जो डेंजर होता, रिलेशनशिप पे जो इफेक्ट पड़ता अपने को, वो चीज़ को अपने को कोर मीनिंग लेसन में बताया गया। समझ में आ गया ना क्या लिखना है आपको? एनकन चिको है, लॉटरी टिकट के बारे में अपने को है, इसमें ह्यूमन के जो है सो इमोशंस के बारे में बताया गया है अपने को, और जो डे ड्रीमिंग करते हैं उसका डेंजर कैसा लाइफ पे इफेक्ट होता है उसके बारे में बताया गया। नाउ एसेंस ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी बिगिंस, अब ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती देखिए। द स्टोरी बिगिंस विथ इवन डिमिट्रिज, ए मिडिल क्लास मैन है जो सेटिस्फाइड है विथ हिज लाइफ, उनकी लाइफ जैसी भी चल रही थी, मिडिल मैन है उन्होंने, लेकिन अच्छे से चल रही थी उनकी लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ थी उनकी। ही सिट्स ऑन हिज सोफा, एक दिन उन्होंने उनके सोफे पे बैठे हुए हैं, रीडिंग द न्यूज़पेपर आफ्टर सपर। हीज वाइफ माशा जो है सो रिमाइंड कर रहे हैं उनको कि चेक द लॉटरी टिकट, न्यूज़पेपर में जो लॉटरी टिकट अगर अपन कुछ बम्पर प्राइज ऑफर्स जो भी लेते ना अपन, अब फेस्टिवल के टाइम पे अपन जो खरीदते तो अपने को जो देते, तो वैसा न्यूज़पेपर में उसका विड्रॉ आता नंबर, तो वैसा यहाँ पर उन्होंने उनके हस्बैंड को बोल रहे कि लॉटरी टिकट को चेक करो बोल के। इनिशियली इवेंट डिसमिसेस द आइडिया, उन्होंने वो आइडिया को पहले डिसमिस कर दिए। स्केप्टिकल अबाउट द लॉटरीज आउटकम, वो आना भी है सो उनको नहीं मालूम था। हाउएवर एज ही लुक्स एट द नंबर्स ही रियलाइज दैट द सीरीज ऑन देयर टिकट मैचेस द विनिंग सीरीज इन द न्यूज़पेपर। एकदम अब उन्होंने जो है सो पहले तो उनको उतना बिलीव नहीं रहता कि ये लॉटरी टिकट क्या रहता, उनकी वाइफ ज़्यादा जो है यहाँ पर ये स्टोरी में ये बताया गया कि वो मोस्ट प्रोबेबली फोर्सेबल उनकी वाइफ की वजह से उन्होंने वो टिकट को ख़रीदे थे, ठीक है। उनको उतना इंटरेस्ट नहीं था, उनको उतना बिलीव नहीं था, बहुत सारे आदमियों को यकीन नहीं रहता ना, इट इज़ लोगों के बिलीव पे डिपेंड रहता लॉटरी टिकट खरीदना, परचेस करना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सबकी लक नहीं रहती कि लॉटरी टिकट से जो है सो विनिंग इज होना बोल के, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक दैट। सो यहाँ पर इन्हों भी वैसे जो है सो बहुत नेग्लिजेंस था उनको, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ ले लिया बोल के उन्होंने चेक करे, तो क्या हुआ बोले तो यहाँ पर मेन जो है सो अब एक नंबर है समझो 1 2 4 6 7 8, ये सीरीज है समझो, इनकी जो लॉटरी की टिकट की नंबर की सीरीज है 1 2 4 6। इन्हों लॉटरी के टिकट को यहाँ पर ही देखे 1 2 4 6 आया बोल के, ये आगे के नंबर को अभी देखे भी नहीं, यहाँ से स्टोरी बिगिन होती, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको कॉन्सेप्ट। 1 2 4 6 ऐसा एक उनकी लॉटरी का टिकट का नंबर है सपोज। एज दिस मोमेंट, अब उन्होंने न्यूज़पेपर में सीरीज को देखे, दे टिकट मैच हो जा रहा 1 2 4 6 1 2 4 6, न्यूज़पेपर में भी दिख गया उनको 1 2 4 6 मैच होते ही द विनिंग सीरीज इन द न्यूज़पेपर। As the moment, Even and Masha are overwhelmed with the excitement, जैसा 1 2 4 6 दिखे लोग वहाँ तक के रुक के खुश हो गए लोग, एक्साइटमेंट में आ गए एंड स्टार्ट ड्रीमिंग। अब जैसा कि उनका नंबर आ गया 1 2 4 6 6 उनका नंबर था, और न्यूज़पेपर में भी 1 2 4 6 6 है, समझ के वो लोग क्या करे इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले गए। एक्साइटमेंट एंड स्टार्ट ड्यूरिंग ड्रीमिंग अबाउट देयर पॉसिबल फॉर्च्यून, आने के अब उनकी किस्मत बदल गए, अब आगे उनकी लाइफ कैसा रहेंगी वो इमेजिनेशन में चले गए। दे इमेजिन विनिंग 75,000 रबल्स, ये जो है सो 75,000 की जो है सो लॉटरी थी ये रबल्स में, एंड इनॉर्मस सम ऑफ मनी एट दैट टाइम, उन लोगों के लिए वो बहुत बहुत जो है सो मतलब
इमेजिनेशन उन लोगों का करो आप लोग के, उन लोगों के लिए वो 75,000 रबल्स बहुत एक ह्यूज अमाउंट, इनॉर्मस, एक लार्ज अमाउंट था उन लोगों के लिए वो. देयर माइंड्स आर फिल्ड विद ग्रैंड विजन्स ऑफ एस्टेस्ट, फॉरेन ट्रैवल्स करना और जो है सो लग्जरियस लाइफ स्टाइल, इवन फंटेजाइज्ड अबाउट बाइंग एन स्टेट, एक प्रॉपर्टी भी ले लेंगे अपन, ट्रैवलिंग टू एक्जोटिक लोकेशंस और लिविंग लाइफ लाइक फ्री ऑफ वर्क. कामिश नहीं करना है अब यहाँ से अपने को, चलो अपने को एक लग्जरियस लाइफ जो है सो जीना है, एक प्रॉपर्टी ले लेंगे अपन, ट्रैवल करेंगे, ऐसा जो है सो लोग डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर दिए. एंड हैविंग ए लाइफ ऑफ फ्री ऑफ वर्क, काम भी नहीं. माशा टू, माशा भी वैसे सपने देखना शुरू कर दिए उन्होंने. ड्रीम्स ऑफ कंफर्ट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, चलो पैसों का मतलब जो लेडीज को जो रहता ना जुगोती जो बोलते हैं, मतलब सेव करना, कम खर्चा करना. अब सपोज आपके फादर की इनकम 50,000 है तो आपके मदर क्या सोचते हैं इसमें से कितना अमाउंट सेव करके रखना, ऐसा हर एक की आदत रहती है. ठीक है, तो वैसा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अब अपने गन ज़्यादा अगर पैसे आ गए तो अपन वो ये जो थिंकिंग रहते हैं अब फाइनेंशियल अपन कंफर्ट जोन में आ जाते हैं अब बोल के माशा की सोच ऐसा हो गई. हाउएवर एज देयर इमेजिनेशन रन वाइल्ड डार्कर इमोशंस बिगिन टू सरफेस. अब ये यहाँ तक तो अच्छे अच्छे ख्वाब हम पूरी एक दे इमेजिन करो आप लोगों की दुनिया कहाँ पर चले गई अब उन लोगों की. इवन स्टार्ट्स टू सस्पेक्ट डेट माशा वुड होल्ड द मनी. अब यहाँ पर दोनों के एक दूसरे के ऊपर शक, सस्पिशन आना शुरू हो गया. अब इवन इन्हों क्या सोच रहे, इवन जो हस्बैंड है उनके, उन्हों सोच रहे कि माशा जो है सो, क्योंकि लॉटरी टिकट के लिए फोर्स उन्हों ही करे थे ना, जस्ट नो स्टार्टिंग आई टोल्ड यू नो कि इवन को उतना बिलीव नहीं था, माशा उनको फोर्स करे थे वो लिंगे बोल के. तो इन्हों क्या सोच रहे कि अब ये पैसे पूरे माशा के हो जाते हर सेल्फ और स्पेंड इट फ्रीविलेसली. अब उन्होंने अपनी मर्जी से इसको शायद खर्चा करती होंगी बोल के उन्होंने सोच ले रहे. कौन, इवन ही इमेजिन हर लॉकिंग द मनी अवे एंड begrudging him even a small portion of it. तो अब यहाँ पर उन्होंने इमेजिन कर ले रहे कि पैसों को पूरे लॉक करके जो है सो मैं ले लूँगा. सिमिलरली माशा सोच रहे कि रीसेंट इवन थिंकिंग ही वुड वेस्ट द मनी. इवन को अगर पैसे दिए तो वो पूरे पैसे वेस्ट कर देते ऑन अननेसेसरी लग्जरियस और कीप इट अवे फ्रॉम हर. और जो है सो मेरे पास से दूर चले जाते उन्होंने, वहाँ पर जाके उन्होंने अच्छा कहीं भी ट्रैवल करके पूरे पैसे अच्छा एंजॉय करते उन्होंने. दिस ग्रोइंग डिस्ट्रेट क्रिएट टेंशन. अब दोनों के अंदर बहुत टेंशन बढ़ जाता, कैसा करेंगे पैसों का बिटवीन देम. एंड दे बिगिन टू सी ईच अदर ऑन ए ग्रीडी एंड सेल्फिश. अब एक दूसरे के एक जो लव था, जो है सो एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट था, वो बॉन्डिंग जो थी वो यहाँ पर वेल्थ को लेके जो है सो उन दोनों में वो बॉन्डिंग कम होने आ गई, ग्रीडी की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से. थर्ड पैरा में आपको उसके बारे में लिखना है. थर्ड, द टर्निंग पॉइंट कम्स व्हेन इवन फाइनली चेक द कंप्लीट टिकट नंबर. अब जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताई ना 1 2 4 6 7 8, अब आ रहे लोग ये 7 8 करने लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर शुरू होता. देखिए टर्निंग पॉइंट आ जाता स्टोरी में. the complete ticket number and realize that it does not match the winning ticket. ये 7 8 नहीं, 7 8 जो है ना एक्चुअली इन लोगों का टिकट नंबर है, लेकिन वो 7 8 नहीं मैच हो रहा. वहाँ पर 1 2 4 6 तक है. ये 2 नंबर शायद मेरे ख्याल से, सपोज फॉर एग्जांपल आपको अच्छा समझ में आने के लिए मैं बोल रही हूँ आपको, ये 1 2 4 6 इनका 7 8 है, लेकिन वहाँ पर जो है सो सपोज 7 4 था, 74 इनका 78, ऐसा लास्ट डिजिट उनके मैच नहीं हुए टिकट से. ठीक है, कंप्लीट टिकट नंबर उनका मैच नहीं हुआ विनिंग टिकट का. द ड्रीम ऑफ विनिंग द लॉटरी वैनिश, ख़त्म. ठीक है, वहाँ जो सपने थे वो पूरे ख़त्म हो गए इन एन इंस्टेंट. जगह पे उन लोगों के जो ड्रीम ख्वाबां थे वो पूरे ख्वाबां वहाँ पर ख़त्म हो गए. बोथ इवन एंड माशा आर लेफ्ट फीलिंग फूलिश एंड रिजल्ट. अपने आप को लोग फूलिश एंड रिजेंटफुल समझने लगे उन लोग. द इल्यूजन ऑफ द वेल्थ. अब यहाँ पर अपने को प्रोज में ऑथर ये क्या समझाना चाह रहे कि वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो आपके अच्छे रिश्ते को भी ख़त्म कर दे सकती. विच हैड ब्रॉड देम जॉय एंड एक्साइटमेंट. एक पैसे पहले तो खुशी भी आ सकती है अपने को, एंड नाउ लीव्स देम डिससेटिस्फैक्शन. अब उन लोगों को जो एकदम डिससेटिस्फाइड हो गया उन लोग, एंड बिटर अबाउट देयर मॉडेस्ट लाइफ. और कड़वापन आ गया उन लोगों को ये लाइफ से.
सो थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? ग्रीड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, लालच क्या और उसका जो नतीजा होता अपने को, उसके बारे में बताया गया. द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ मियर आइडिया ऑफ वेल्थ कैन ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन पीपुल. पैसा आ जाने के बाद लोगों में, उनकी लाइफ में कैसा जो है सो चेंजेस आ जाते हैं, उसके बारे में बताया. इवन इन माशा हु आर प्रीवियसली कंटेंट विद देयर लाइफ्स, अपनी लाइफ में लोग सेटिस्फाइड रहते. एक मिडिल क्लास फैमिली थी एंड सेटिस्फाइड फैमिली थी उन लोगों की. बिकम कंज्यूम्ड बाई ग्रीड, सेल्फिशनेस की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गए. देयर म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर भरोसा चले गया उन लोगों को. स्टोरी में सेकेंड पैरा में अपन देखे ना कि कैसा जो है सो लोग जो है सो इमेजिन करे कि उन्होंने हस्बैंड वाइफ पे सस्पेक्ट कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड पे सस्पेक्शन शुरू हो गया उन लोगों की लाइफ में. ठीक है. देयर म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट ग्रोथ बढ़ गया उन लोगों का. इमेजिन सिनेरियोज वेयर द अदर वुड मिसयूज द मनी, एक दूसरे के ऊपर सस्पेक्ट कर रहे लोग कि दूसरे जने जो है सो मिसयूज कर लेंगे मनी को. चिको इलस्ट्रेट हाउ ग्रीड कैन करप्ट इवन मोस्ट हारमोनियस रिलेशनशिप, अच्छी खासी जिंदगी में भी वेल्थ आने से कैसा जो है सो करप्ट हो जाता है इंसान, उसके बारे में इन्होंने बताया. नेक्स्ट, डिसकंटेंट विथ रियलिटी. इवन एंड माशा डे ड्रीम्स, उनके ख्वाबों में पैसों को लेके लोग जो अपनी ख्वाबों की दुनिया में चले गए थे, मेक देम डिससेटिस्फाइड विद देयर करंट लाइफ. उन लोग अपनी करंट लाइफ को जो है ना उसको इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिए उन लोग. ठीक है. डे ड्रीम में जाके उन लोग अपने रियलाइज नहीं कर रहे उनके उन लोग प्रेजेंटली भी बहुत अच्छे हैं बोल के. Instead of appreciating their modest but happy existence, they focus on what they lack. अरे हमारे पास ये नहीं है, अपन ट्रैवल करेंगे, हमारे पास लग्जरियस लाइफ नहीं है, ऐसा वो लोग जो है सो प्रेजेंट को जो है सो भुला के अब इन लोग उसमें कमियां देखना शुरू कर दिए. These discontentment leads to bitterness and unhappiness even though nothing about their actual circumstance has changed. तो एक्चुअली तो उनके हालात कुछ बदलने के नहीं है. सो नेक्स्ट, द फ्रैगिलिटी ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बताया यहाँ पर. चीको को वो इल्यूशन ऑफ हैप्पीनेस, खुशी जो है वो टेम्परवरी थी, बस ख्वाबों की दुनिया की थी. सिंबलाइजी ऑफ आयरनी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. दिस इल्यूशन ऑफ हैप्पीनेस एंड फ्रैगिलिटी, अगेन सेम पॉइंट्स आर रिपीटेड देयर. सिंबलाइजम ऑफ आयरनी, लास्ट में क्या अपने को है वो लिखना है आपको. ठीक है. सिंबलाइजम एंड आयरनी. द लॉटरी टिकट, द टिकट सिंबलाइज होप. सिंबलाइज क्या कर रहा है यहाँ पर? एक मेन चीज होप क्रिएट कर रहा है यहाँ पर. एंड देन ह्यूमन टेंडेंसी टू ड्रीम, उम्मीद आ जाने के बाद लोग पैसा आने की ख्वाहिश में जो है ना जो सपने देखना शुरू कर देते हैं, वो बेटर लाइफ हो जाती है बल्कि. हाउएवर इट आल्सो रिप्रेजेंट द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ वेल्थ, ये पैसों की जो झूठी प्रॉमिस रहती एंड द डेंजर ऑफ अनरिजनेबल एक्सपेक्टेशन. इंसान जो पैसा आया तो हम ये करेंगे बल्कि अनएक्सपेक्टेबल जो चीज़ों को सोचता, उसके बारे में बताया गया है कि दे लूज देयर प्रेजेंट इंपॉर्टेंस. उनके अब जो प्रेजेंट जो हैप्पी लाइफ है उसको भूल जाते हैं लोग, उसको रियलाइज करना भूल जाते हैं लोग वो चीज़ की वजह से. आयरनी, ये सिंबलिज्म है. आयरनी क्या है? द स्टोरी is rich with irony. Even in Masha excitement about lottery leads to tension में आ गया लोग, unhappiness. Even though they have not one, फिर भी वो लोग जीते ने वो, लेकिन उसकी वजह से भी फिर टेंशन की लाइफ हो गई उन लोगों की. जो थिंकिंग, जो ट्रस्ट टूट गया एक दूसरे के ऊपर से, वो उनकी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर इफेक्ट हो गया. द लॉटरी टिकट विच शुड ब्रिंग जॉय इंस्टेड एक्सपोजेज द क्रैक्स इन द रिलेशनशिप. लॉटरी टिकट खाली सोच से जो जॉय आया था, उसके बजाय खुशियाँ आने के बजाय उनकी लाइफ में इंस्टेड एक्सपोजेज द क्रैक्स इन द रिलेशनशिप. ये पॉइंट आपको मेन है यहाँ पर आयरनी में कि उनका जो अच्छा खासा रिलेशनशिप था वो क्रैक्स हो गया. वो ठीक है, दरार आ गई उनके रिलेशनशिप में, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसट्रस्ट हो गया एक दूसरे से. दिस इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.